ओके ओके सो वेलकम टू डे 2. हाउ वाज द डे सर? यस्टरडे कैसा गया, कल का दिन? कल का दिन थोड़ा हेक्टिक था। अ, प्रैक्टिस को टाइम दो मिला बार मैंने आपका नहीं? हाँ, 2 बार मैंने प्रैक्टिस किया है उसका। राइट राइट राइट. सो उठने में कैसा लगा आज? अ, हाउ डू यू फील व्हाइल गेटिंग अप? अ, उठते वक्त थोड़ा तकलीफ तो हुआ, बट एक बार उठने के बाद अच्छा लग गया। गुड गुड गुड, ऑसम ऑसम. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. सो अगेन वेलकम डे टू. और जैसे हमने रूल सेट किया है कि इफ यू कैन बिलीव इट यू कैन डेफिनेटली अचीव इट. क्वेश्चन इज बिलीव, क्या मैं कर सकता हूँ? और इमोशनल ब्लॉक जो होती है वो हमको यही तोड़नी होती है. बिलीव बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, million dollar question, what do you want? I want you all to write down this question in your notebook. And today, at least you have to ask this question. Ask this question 108 times to yourself. And just go on writing. Whatever comes in your mind, what do you want? Just एक प्रैक्टिस के लिए अश्विन जी, मैं आपसे कम से कम 4 बार पूछूंगा और आपको मुझे आंसर देना है. सोचना नहीं है, मैं पूछते जाऊंगा, हम्म, आपको बोलते जाना है. हम्म, रेडी अश्विन जी? या Okay, what do you want? पीस, What do you want? जॉय, What do you want? हैप्पीनेस, What do you want? फन, What do you see when you say peace? Close your eyes and describe in 30 seconds. See what you are seeing when you say peace. Describe it. uh, amidst some mountain. You are in a mountain. Relax, You are yeah, relaxed. yeah. Okay. Amidst in nature, amidst in mountain, Mm-hmm. cool breeze is going on, Okay. and very relaxed state is there. The Mm-hmm. birds are chirping Mm-hmm. and feeling very relaxed and very peaceful at that state. Fine. When you say you want joy, then what do you see? I'm doing some sort of trek. After completing that small trek, I'm feeling sense of some sense of achievement, some sort of joy on my face. Okay. So what you will do now? It is the exercise for today. You all have to write down in your notebook. एक notebook के अंदर लिखना है इसको, और उसको क्या करना है? शेयर करना है. ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पार्ट. जो भी ग्रेट पीपल हैं उनके अंदर क्या कॉमन दिखता है? कोई भी एक काम करिए, आप मुझे 4 ग्रेट लोगों के नाम बताइए जिनसे आप एडमायर होते हैं या आज इनको देखते हैं आप. टेल मी द नेम ऑफ 4 पीपल. नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, रतन टाटा, रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, my father, ठीक है. What do you see common in them? Tell me some attributes or qualities. hard work and sincerity. Hard work and sincerity. ठीक है. और Very presentable. presentable. Okay. True to themselves.
True to self. Yes, true to self. Okay, next. Helping to society, giving to society something in return, Service. giving back to society, service to society. Yes. What else? Mm, happy. Fine. ठीक है. Thank you for sharing. So the great people, they have few things are very common. That is, the first thing is the burning desire. Not only desire, burning desire. इससे कम में कुछ नहीं चलेगा. अच्छा ड्रेस चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, फिजिकल है. अच्छा जीवन चाहिए, ये इंटेंजिबल है. Right? So burning desire is the first and the most important thing. All the great people, those who have achieved a height, burning desire is very much necessary. 95% people don't have the burning desire. Only 5% people have the burning desire. This is the fact. Rule remains same all the time. 95% people don't have the burning desire. Their life is just going on. चल रहा है life. चल रहा है तो चल रहा है. उठ गए, ब्रश कर लिया, routine काम. So there is no burning desire, right? Burning desire is very much necessary, and we have to find out that. We have to dig deep. What is my burning desire? Okay, which hurts the most. Second, they all have the tremendous passion. Now they have linked the burning desire with the passion. इससे कुछ कम नहीं. Like if you talk about Narendra Modi, he has a burning desire कि I have give something to the nation. Okay, ये इतना सारा सब बनाया हुआ है, कुछ तो बदल के जाना है, कुछ तो दे के जाना है, कुछ तो करना है. And that burning desire he has linked with the passion. Now what is passion? When you do anything 24/7, you don't get tired. The more you do, the more energy you get. There is a rule. The rule of passion is, the more you do, the more energy you get. Your work is the energy giving things, right? That is a very, very important thing. Next part comes strongly believed in themselves. They all have a strong belief that they all can do it. Anuradha ji, if possible, please switch on the video so that we can see that at least. Okay. So, is this clear to everyone till here? Yes. कुछ भी confusion है इसके अंदर किसी को? So, पहली चीज क्या है? Burning desire, second passion, and third is a strong belief. तीनों चीज का होना जरूरी है. अगर तीनों में से कोई एक चीज होगी, एक नहीं होगी, तो लाइफ में वो चीज अचीव करने में हमें मुश्किल होगी. किसी को बर्निंग डिजायर ही नहीं है, किसी को पैशन की कमी है, किसी को बिलीफ की कमी है, राइट? तो ब्लॉक्स कैन बी एनीवेयर. Okay, so we are going to work on that, and when we have all these three things, we becomes unstoppable. ठीक है? So नमस्ते, नमस्कारम. अनुराधा जी उठ गए आराम से? कितने बजे उठे आप? I got up at 6:15. Wow, awesome, great. So how did you feel after doing the exercise yesterday? Yeah, it was quite awesome. Actually, it felt very good. Wow, great. So the one factor which is most critical, and that is which factor? 100% belief. In whom? Self and goal. Like as I see many people, those who believe that yeah they will be get up in the morning early 4 o'clock, मान लो उनकी फ्लाइट है, उनको जाना है, और रात को समझो 12 या 2 बज गए, एंड दे बिलीव वेरी स्ट्रांगली कि हाँ 2 बज गया तो क्या हुआ. बड़ा सिंपल, मतलब नॉर्मल वे में, हाँ 2 बज गया तो क्या हुआ, मैं तो 3 बजे उठ के 4 बजे की मैं कैब पकड़ के निकल जाऊंगा. एंड दे स्लीप वेरी रिलैक्स्ड वे एंड दे गेट अप आराम से. बट द पीपल दोज हु थिंक इन दिस वे, यार इतना लेट हो गया है, कैसे उठूंगा, क्या होगा तो क्या होता है, राइट? इन बिजनेस आल्सो आई हैड सीन, हाँ ठीक है हो जाएगा, हाँ ठीक है, क्या है ये प्रॉब्लम है, ओके ठीक है हो जाएगा. सो आइडिया आने के लिए भी क्या होना चाहिए? बिलीफ होना चाहिए. आइडिया आने के लिए, मैनिफेस्टेशन होने के लिए बिलीफ होना बहुत जरूरी है.
ठीक है। और ये क्या है, ये थॉट प्रोसेस है, ये हम उसको कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, राइट। और बिलीफ होगा तो ही एक्शन में कन्वर्ट होगा। मेरा एक फ्रेंड था, तो वो इसमें प्रेस में ना रिपोर्टर था वो। तो उसका जॉब कैसा होता था कि रात को ना 12 बजे वो होता है ना प्रिंटिंग का सारा, तो प्रूफ रीडिंग करने का, सारा एडिटिंग करने का, उसको डेली का 2 बजे तक का काम उसका पूरा होता था। वो घर पे आता ही था 3 बजे। तो कई लोग बोलते थे कि यार यार इसके जॉब ही ऐसा है, इसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। तो मैंने उसको एक बार पूछा, मैं बोला यार तू 3 बजे आता है, फिर तेरा शेड्यूल कैसा रहता है? बोला नहीं सर नॉर्मल है। एक बार अपने आप को मैंने समझा दिया, मेरा काम ही यही है, मैंने अपने आप को समझा दिया है, मैं 3 बजे घर आऊंगा, रेस्ट करूंगा, आराम से मैं उठूंगा, so there is no problem at all, and he is doing well. So belief is very very important. Whatever you are, if you believe that कि नहीं होगा तो नहीं होगा, if you believe that होगा then होगा, ठीक है। So it works like a GPS system. GPS में कैसे है, हम लोग टारगेट लिख देते हैं और अपना वो प्रेजेंट लोकेशन ले लेता है, तो हमें दिक्कत कभी होती है। मान लीजिए हम लोग ने एक टारगेट दे दिया कि आई हैव टू गो टू फोर्ट, ओके, फोर्ट आरबीआई बैंक, चलो मैंने डाल दिया। और मान लो मैं अभी कहां पर हूं, मेरा लोकेशन ले लिया बैंड्रा, बैंड्रा बीकेसी मेरा लोकेशन ले लिया। अब मुझे भले रास्ता पता हो या ना पता हो, पर मुझे मुश्किल होगी क्या जाने में? नहीं। ओके, कभी दिक्कत नहीं होगी ना, राइट है, ओके। सो वैसे ही जब हम लोग सेटअप कर देते हैं ना, ठीक है, तो जब हम लोग सेटअप कर देते हैं कि मुझे क्या चाहिए, तो लाइफ में अपने आप आइडिया आना शुरू हो जाता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो हमें सेट करना बहुत जरूरी है कि हमें क्या चाहिए, और उस पर बिलीफ होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड 100% बिलीव, then your subconscious mind creates and attracts everything required. सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट हम लोग कल बात करेंगे, आज हम लोग ज्यादा उसे बात नहीं करेंगे, लेकिन खाली बेसिक ये समझ लेते हैं कि पीपल जो हैं, लोग जो हैं, आइडियाज जो हैं, अपॉर्चुनिटी जो है, सिचुएशन जो है, सर्कमस्टांस जो है, ये सारे हम लोग अट्रैक्ट करते हैं, राइट है। इसको मैं ना सबकॉन्शियस का जो है ना, ये 5 डेज मेंटल वेलनेस में एक्सप्लेन करता हूं मैं डिटेल्स में। वी हैव अनदर प्रोग्राम कॉल्ड एज 5 डेज मेंटल वेलनेस प्रोग्राम। तो उसके अंदर वी गो डीप अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड, कैसे ये काम करता है, कैसे मैनिफेस्ट करता है, ठीक है। तो हम ही क्या करते हैं, लोग अट्रैक्ट करते हैं, हम ही क्या करते हैं, आइडियाज अट्रैक्ट करते हैं, हम ही क्या करते हैं, इवेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, सब कुछ हम ही अट्रैक्ट करते हैं। हमारा माइंड ही क्या है, ट्रांसमीटर है, और हमारा माइंड ही क्या है, रिसीवर है। अब होता क्या है, इसमें डाउट आ जाता है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इस यही डाउट क्या करता है, सारा चीज को खत्म कर देता है, राइट। और इस डाउट को किल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और वो डाउट को किल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईएफटी करते हैं, ठीक है। अब ईएफटी का कल मैंने बताया था कि आपके बॉडी के अंदर आपको महसूस करना है, क्या फिजिकल डैमेज है या मेंटल, कहीं पर लग रहा है कि नींद का इश्यू है या क्या है, या डर लगता है या याददाश्त कमजोर हो रही है, वो चीज को चेक करना है। उस प्रॉब्लम को नंबरिंग करनी है 1 to 10 में। 0 का मतलब प्रॉब्लम नहीं है, 10 का मतलब प्रॉब्लम बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अपने को सेटअप स्टेटमेंट करना है। स्टेटमेंट सेटअप सबने किया कल, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, इवन दो आई हैव, जो भी चैलेंज है, राइट, आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ, ठीक है। सबने लिखा कल, अश्विन Yes. लिखा, 10 स्टेटमेंट्स लिखे कल? हाँ हम Yes, Okay. yes. Okay, fine. The tapping sequence, टैप 7 times, हर एक पॉइंट पे 7 बार करनी है। 8 पॉइंट मैंने बताया था कल, राइट है, ओके। डायग्राम्स कल मैंने दिखाया था, ये मैंने क्लास में कल भेजा था, मिला सबको ये डायग्राम? हाँ हाँ मिला। ये कराटे चॉप पॉइंट है, सेटअप करना है, एक ही बार करना है, और ये सारे 8 पॉइंट है। इसमें एक यहाँ पर पॉइंट दिया नहीं है सर के ऊपर वाला, राइट है, तो मैं रिपीट करता हूँ, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 4, ये पॉइंट 5, ये पॉइंट 6, ये पॉइंट 7, और ये ऊपर वाला पॉइंट 8, ठीक है, ओके। सो डिटरमाइन द स्ट्रेट लेवल अगेन। तो फर्स्ट राउंड किया हमने, पानी पिया,
फिर वापस चेक करना है, फिर वापस हमने एक राउंड किया, फिर वापस हमने देखा, और जब तक हम लोग को करना है जब तक ये हमारा कहाँ चले जाता है, 0 तक चले जाता नहीं है। तो दिन में पूरा दिन चाहिए तो रिपीट करो एक प्रॉब्लम को लेके। कब तक रिपीट करो? जब तक ये 0 पर नहीं पहुंच जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए, तो आज क्या चैलेंज लेंगे हम लोग? व्हाट चैलेंज वी विल टेक टुडे? अनुराधा जी, व्हाट इज द चैलेंज? टेल मी वन स्टेटमेंट जिस पे हम लोग काम करना है आज। So anger is something which is I really would like to work on. टेल मी स्टेटमेंट। Yeah, 1 second. I'm just opening my page. So I wanted to go. I wanted to reduce my anger, Okay. and yeah, so because it becomes very challenging at times when we are thinking. So even though I have anger, the sentences that you have sent yesterday, even though I have anger, I deeply and completely accept myself. Even though I have a lot of rage, No, I let's deeply set up only one thing. Let's set up only one thing, right? Even okay. I have anger, I deeply and completely accept myself. I deeply and completely accept Myself. myself. What do you do when you are angry? Do the things, you hit somebody, you start using bad words. What do you do? Yeah, I yell at a lot. I shout, and at times I become very silent. There are 3 ways of expressing my anger. Because it differs from person to person. So people start throwing the things. और घर में टीवी तोड़ देंगे, कुर्सी तोड़ देंगे, चीजों को फेंकेंगे, right? That is the one way of releasing the anger. कोई सामने वाले को चिल्लाता बहुत तेजी से है, right? I feel like doing it. But obviously I Control don't. yourself. I get that control. Yeah. ठीक है, ठीक है. So let's what is the intensity, ma'am? It's 9 to 10. 9 to 10. तो चलो एंगर पे करते हैं, चलेगा? अश्विन जी एंगर पे करें? यस। ओके, चलिए। तो अभी आज हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट जॉब स्टेटमेंट ले लीजिए। आज अनुराधा जी आप ही बोलोगे या आई शुड से? It's better if you can say so that I can write it down. ओके, no, कुछ लिखो मत, रिकॉर्डिंग तो देख लेना बाद में, ठीक है? मैं एक सिंपल सा एक मेथड बोलता हूँ। फर्स्ट राउंड में हम लोग क्या करेंगे? इन फर्स्ट राउंड वी विल टॉक ऑल द नेगेटिव। जैसे क्या बोलेंगे? अरे बहुत गुस्सा आता है, क्या करने का, सामने वाला ऐसा करता है, मैं चाहती नहीं हूँ गुस्सा करना लेकिन वो करता ही ऐसा है ना? मैंने उसको 10 बार बोला ऐसा मत कर, फिर भी वो ऐसा करता है ना? तो गुस्सा आ ही जाता है ना? क्या करने का, राइट? समथिंग नेगेटिव। Okay. The second round you have to talk acceptance mode. अभी है ही उसका नेचर, उसको समझता ही नहीं है, तो क्या करने का? उसको मैंने 10 बार बोला कि चाय का कप पीने के बाद लाके किचन में रखने का, लेकिन वो रखता ही नहीं है लाके, वो हॉल में ही रखता है, जिधर पिएगा चाय उधर रख देगा। अभी करने का क्या? कई बार बोल चुका हूँ, सुनता ही नहीं है। ठीक है, तो अभी है उसका अपना प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं? रहना तो साथ में ही है ना? मैंने कितनी बार बोला है कि लेट होने का तो फोन करने का, लेकिन फोन करता ही नहीं सामने वाला, है ना? क्या करने का? जो भी प्रॉब्लम हो, है ना, उसको एक्सेप्टेंस मोड में ले जाने का। ठीक है? Okay. हाँ, अब एक्सेप्टेंस से क्या होगा ना, अवेयरनेस बढ़ जाएगा। एक्चुअल गुस्सा क्या है मालूम है? गुस्सा जो है एनर्जी है जो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है, जो मैनिफेस्टेशन में नहीं जा रही है, जो फ्रस्ट्रेशन में जा रही है, और इसमें कुछ मिलना नहीं है, इसमें कुछ मिलना नहीं। मान लो अगर बच्चा है और उसको मैंने बोला होमवर्क कर, और उसने होमवर्क नहीं किया, और डेली मान लो वही चीज हो रही है। अब एक दिन मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको 2 कान नीचे बजा दिया, अब उससे क्या होगा? मुझे लगेगा कि वो होमवर्क कर दे रहा है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन में कर रहा है होमवर्क। दैट इज नॉट द राइट वे। यू हैव टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग द थिंग्स। ठीक है? एंड थर्ड में क्या करना है? थर्ड राउंड में यू हैव टू सी एज इट इज एनकम्प्लिशिंग।
मैं बहुत शांत हूँ, सामने वाले ने ऐसा किया फिर भी मैं बहुत शांत हूँ, उसको एक्सेप्ट किया मैंने, उसको बहुत प्यार की नजर से देखा, है ना, मेरा पूरा दिन मस्त चलता है ना। गुस्सा क्या चीज है मुझे पता ही नहीं है, मेरे चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। जब भी कोई कुछ बोलता है ना, मैं पहले 2 मिनट रुकती हूँ, उसको देखती हूँ, फिर सोचती हूँ ये ऐसा क्यों कर रहा है, शायद इसको समझ में नहीं आ रहा है, शायद इसका अवेयरनेस ही उतना है, शायद उसकी बुद्धि ही उतनी है, शायद उसका समझ ही उतना है, और फिर मैं उसको वापस समझाती हूँ। गुस्सा मुझे अभी आता ही नहीं है, मैं बहुत शांत हूँ, बहुत कूल एंड काम हूँ, राइट। गुस्सा बड़ा सिंपल है, ये एनर्जी मैनिफेस्टेशन है। इस गुस्से को ना, जो एनर्जी है ना, बहुत बहुत बड़ी ट्रिमेंडस एनर्जी जनरेट होती है गुस्से में। न्यूक्लियर जैसे वेपन छोड़ दें ना हम लोग, न्यूक्लियर वेपन, एटम बम, हाँ, वैसा ही एंगर में एनर्जी जनरेट होता है, राइट है। एंगर, सेक्स, हेट्रेड, है ना, जेलस, ये सब में बहुत हाई एनर्जी डेवलप होती है, राइट है। लेकिन उस एनर्जी को चैनलाइज कैसे करना है, उस एनर्जी को चैनलाइज कैसे करना है, वो सीखना बहुत जरूरी है, राइट है। अभी मैं आपको बोलूंगा कि एक कोई बहुत बड़े सन्यासी थे, राइट, ठीक है, और एक राजा था। तो वो राजा जो था, वहां की कोई एक लेडी थी, राइट है, और वो नर्तकियां होती है ना वैसा। तो उस राजा ने उस नर्तकी के ऊपर मोहित हो गया और उसके साथ उसने रिलेशन बनाया। अब ये योगी तो योगी सन्यासी, अब देखो गलती क्या कर दी इसने, गलती से क्या बोल दिया कि राजा को किसी ऐसे के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहिए। अब वो नर्तकी को गुस्सा आ गया, हेट्रेड आ गया, और उसने जहर देके उस राजा को मरवा दिया। दैट इज सो डेंजरस। तो गुस्से में भी क्या होता है, कोई किसी का गला काट देता है, कोई 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 किसी का मर्डर कर देता है, कुछ भी होता है गुस्से के अंदर। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे ना, एक पहला हम लोग क्या करेंगे, इसको निगेटिव बोलेंगे, ठीक है। हाँ, और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सेप्टेंस में जाएंगे, और थर्ड हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव पॉजिटिव। बोलेंगे। लेकिन अभी मुझे गुस्सा आता नहीं है तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, मुझे मुश्किल होगा गुस्सा बोलने के लिए। सो आई वांट हाँ, योर हेल्प। आई वांट यू टू डिस्क्राइब, इज दैट ओके? yeah, it's all right. I'll try. हाँ, यू जस्ट सी व्हाट यू डू ना, जस्ट क्या करो, आप उसको महसूस करो, क्या देख रहे हो आप, है ना, राइट। क्या महसूसता होती है वो आपको बोल बोल के निकालना है। वॉट एवर इज हैपनिंग, उस सिचुएशन में जाना है, और उस टाइम कैसा आपको महसूस होता है वैसा आपको बोल के निकालना है। इज दैट ओके? Yes, yes. ये ओके ओके। चलिए लेट्स स्टार्ट। पानी लेके बैठे हैं सब लोग, पानी लिया है? हाँ, हाँ. ओके ठीक है, चलिए। सो सेटअप करते हैं पहले स्टेटमेंट, आई विल हेल्प इन द स्टेटमेंट सेटअप। इवन दो Even though I get angry, I get angry, I deeply and completely I deeply and completely accept. accept myself. Even though Even though I get angry, I get angry, I deeply and completely accept myself. I deeply and totally accept myself. अनुराधा जी, what is the frequency? एक दिन में कितनी बार गुस्सा कर लेते हैं आप? It depends one time maybe. फिर भी एक बार, 2 बार, 3 बार? एक बार, एक 2 दिन में. बार हो जाता है, अच्छा। आप गुस्सा करते हैं या गुस्सा हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, नेचुरली होता है या गुस्सा करते हैं? हो जाता है. करते नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं होता है। हाँ. ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार बोल देते हैं लास्ट सेटअप। इवन दो आई गेट एंग्री, Even though I get angry, आई डीपली एंड कंप्लीटली एक्सेप्ट माई सेल्फ। I deeply and completely accept myself. चलिए ठीक है, सो सेटअप हो गया, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट बोलिए। The same sentences, right? नो नो, Negative. सेटअप इज डन, नाउ नाउ यू हैव टू फील एंड यू हैव टू से। हाँ, गुस्सा आ जाता है, गुस्से में आप क्या करते हैं वो सारा देखो और बोलो। Okay, गुस्सा आ जाता है and then मैं चिल्लाने लगती हूँ. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। मैं बैड वर्ड्स कभी कभी यूज कर लेती हूँ. And then I feel, I mean, I throw things out. किसके ऊपर फेंकते हो, खुद के ऊपर या सामने वाले के ऊपर? No, it's generally on the bed or something like that. ओके I ओके ठीक है। everyone. हाँ। Then फिर कंटिन्यू चिल्लाना कंटिन्यू करती हूँ. हम्म।
and I feel like, you know, there should be no one around me. These are the things that happen चालू generally. रखो मैम, टाइपिंग चालू रखो मैम। Yes. टाइपिंग करते जाओ, अपने हिसाब से टाइपिंग करते जाओ। हाँ, मैं मेरे हिसाब से टाइपिंग कर रहा हूँ, हर कोई अपने हिसाब से टाइपिंग करते जाएगा। हाँ, नेक्स्ट बोलते जाइए। हाँ, I feel like, you know, people should understand that गुस्सा नहीं कराना चाहिए, गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, above the head, but we don't understand that, you know, few things are to be done perfectly. ठीक है, अभी क्या करिए, आंख बंद करिए और 3 डीप ब्रीथिंग लीजिए। इनहेल फ्रॉम नोज एंड एक्सहेल फ्रॉम माउथ। Slowly open your eyes, drink water. Okay. और अनुराधा जी आंख बंद करके देखिए कितना दिख रहा है अभी, ये इंटेंसिटी कितनी है? व्हाट इज द इंटेंसिटी नाउ? Maybe 9, because I'm not angry now, so I'm not able to exactly relate to how much it feels, but I think it is better now. Okay, just do one thing. Don't use your logical mind. Just close your eyes and just see what is the number coming in front of you. According to me, it is now 7 or 8. What I can see, 7 or 8 it has to be. Yeah, it shows 8. It is showing 8 na? That is what I'm able to track. ठीक है. So I can say 7 to 8. ठीक है. Fine. So अभी सेकेंड राउंड करेंगे हम लोग, ठीक है? राइट? Okay. ओके, सो सेकेंड राउंड में अब किसके ऊपर गुस्सा आता है आपको? Depends. किसी भी आता होगा ना, किसी की हरकतों पे आता होगा, किसकी हरकत पे गुस्सा आता है? खुद पे? अच्छा, पहले ये नक्की करो, गुस्सा खुद पे आता है या गुस्सा सामने वाले पे आता है? दोनों ही होता है। So let us say if there are 10 incidences, 10 incidents में से कितनी बार खुद पे हुआ है गुस्सा, कितना दूसरे के ऊपर गुस्सा हुआ है? I should say it's equal, because at times, okay, 5. Which is easy to control, on self or on others? On others. On others, it is easy to control? Yes. अच्छा, ठीक है। देखिए, कभी भी ना दूसरों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, खुद कंट्रोल करना आसान होता है। जब खुद पे गुस्सा किस बात पे आता है, कैन यू शेयर? Yeah, because you know, there are some things that I could not teach, maybe. So you know, I should have taught in a much better way, so that, you know, abhi life thoda easy ho jata hai. Otherwise it becomes difficult to to handle everything. So I'll tell you one story. Shall I? yes, please. Okay. There is a girl, her name is Ankita. Okay, she is 14-year-old girl. Okay, और वो ग्लास में पानी लेके जा रही है मम्मी को देने के लिए। सामने से भाई आता है और भाई ऐसे ऊंट जैसा देख रहा होता है, उससे टकराता है अंकिता से और उसके हाथ से पानी का, ग्लास में का पानी गिर जाता है। ठीक है? सो राधा जी, क्वेश्चन, पानी क्यों गिरा? I mean, she should have been a bit careful कि कौन सामने से आ रहे हैं या क्या है,
So थोड़ा थोड़ा और अलर्ट होते हैं तो पानी नहीं गिरता. ओके, अश्विन जी, पानी क्यों गिरा? she was not she was not careful, that's a पानी गिरा. राइट, इसको अलग डायमेंशन से देखेंगे हम लोग. ग्लास में पानी था इसीलिए पानी गिरा. अगर ग्लास खाली होती तो कुछ गिरता? नहीं. ग्लास में अगर गर्म पानी होता तो गर्म पानी गिरता. ग्लास में अगर गर्म चाय होती तो गर्म चाय गिरती. ग्लास में अगर एसिड होता तो एसिड गिरता. It's not the damage because of the water. What is inside? What is inside? जब भी हमें कोई डिस्टर्ब करेगा, हमारे अंदर क्या है वो बाहर निकलता है. ये नेचर का वे है एग्जाम लेने का. आपको कुछ देने से पहले नेचर आपकी एग्जाम लेगी. 3 एग्जाम हर एक को पास करना पड़ता है. पहला हेल्थ की एग्जाम, दूसरा वेल्थ की एग्जाम, तीसरा रिलेशनशिप की एग्जाम और चौथी एग्जाम, ये 3 एग्जाम के साथ नेचुरल कैलामिटी की एग्जाम. ऐसे चौथा मिले ना मिले लाइफ में मुझे पता नहीं, लेकिन ये 3 एग्जाम तो इंसान को पास करनी ही पड़ती है अगर उसको कुछ बड़ा अचीव करना है तो. और नेचर ये एग्जाम लेता है. तो नेचर आपकी परिस्थिति को क्या करेगा? अनकंफर्टेबल बनाएगा. और आपके अंदर का जो भी रहेगा वो क्या, मान लो गन्ना है ना, शुगर केन है, उसको हम क्रश करेंगे, क्या निकलेगा उसमें से? जूस निकलेगा. शुगर केन का जूस निकलेगा, राइट. अब उसको मारो पीटो कुछ भी करो, कितना भी उस पर गुस्सा निकालो, वो एंड में क्या देगा आपको? शुगर केन जूस ही देगा. आपने कोई एक अच्छा फ्लावर ले लिया, जाई, जुई, मोगरा, है ना, चंपा, ऐसा कोई अच्छा फूल लिया, आपको बहुत गुस्सा है, आपने उस फूल को लेके पूरा मसला एकदम, है ना, मसला एकदम मसल दिया उसको, हाथ में क्या आएगा? स्मेल, फूल का ही खुशबू आएगा, राइट है. तो हमारे आसपास जो भी हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर क्या है, कहीं ना कहीं वैक्यूम होता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर सामने वाले से एक्सपेक्टेशन होती है, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है. मान लो एक फादर है और बच्चे को बोलता है कि ऐसे ब्रश करनी चाहिए, और वो बच्चा वैसे ही ब्रश करता है. अगर वो बच्चा अलग ढंग से ब्रश करता है तो फादर को गुस्सा आता है, राइट है. वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द अदर्स एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव. और इसकी वजह से गुस्सा आता है, बाकी कोई रीजन नहीं है. ठीक है, सो चलिए सेकेंड राउंड करते हैं. ओके, रेडी अश्विन जी? या. चलिए, आप बोलेंगे, उनका बैंडविड्थ का प्रॉब्लम चल रहा है अनुराधा जी का. सो विल यू प्लीज कंटिन्यू विद द सेकेंड राउंड. यस. आपको गुस्सा आता है कभी कि नहीं आता है? आता है. आता है गुस्सा. गुस्सा आता है, ठीक है. तो अभी सेकेंड में क्या करेंगे, आप कोई भी सिचुएशन लीजिए और उसको आप क्या करेंगे, पॉजिटिव में बोलेंगे. ठीक है, चलिए बोलिए. I get the anger, but I am trying to control it. Whenever I get angry, I try to see its positivity. I try to see how positively I could get from it. I nowadays I do not get that much angry on any subject. I try to see the anger from positive way. I'm feeling better instead of getting angry. I'm feeling little bit positive way, and that is happening good. Nowadays, I am getting little anger rather than very high anger. I remain calm in anger situation. 3 deep breathings. Drink water.
व्हाट वाज द एंगर लेवल बिफोर फर्स्ट राउंड में, कितना था आपका? Before it was 8, now it is 6. So it has come down from 8 to 6. ठीक है, तो एक और पॉजिटिव राउंड कर लेंगे तो ये और नीचे जाएगा। ठीक है, और इसको तब तक करें जब तक कि ये 0 पे नहीं आ जाता है। ठीक है, धर्मेंद्र जी, I have one more question over here. प्लीज प्लीज। अच्छा, जब भी आप ये बोलते हैं कि when you say that we have to see this statement while tapping on all these points, do we have to really visualize it? Not to visualize, visualize only when it talks about the future. जैसे मान लो अभी गुस्सा आप कर रहे हो तो ये तो आपका पास्ट है ना, तो पास्ट बराबर। चीजों को तो उस समय में जाके देखना है, महसूस करना है, राइट है। जब थर्ड स्टेप आता है कि मैं बहुत शांत हूँ, राइट है, मैं एकदम कूल एंड काम हूँ, तो अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो ओके, अदरवाइज अगर ब्रेन की प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो इमेज नहीं आएगी, तो बोल बोल के करना है, नो प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है, अचीव करने में मुश्किल ये होती है कि हम देख ही नहीं पाते हैं, हमारे आंखों के सामने वो पिक्चर ही नहीं आता है। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि मैं सवेरे उठ रहा हूँ, तो मैं बोल तो रहा हूँ मैं सवेरे उठ रहा हूँ, सवेरे मैं स्नान कर रहा हूँ, सवेरे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, सवेरे मैं रनिंग कर रहा हूँ, मजा आ रहा है, बोल तो रहा हूँ, लेकिन मेरे आंख के सामने कोई पिक्चर नहीं दिख रहा है। तो ठीक है, इट्स ओके, पिक्चर बनते बनते समय लगेगा, लेकिन बोलना तो कंप्लीटली कंट्रोल में है ना आपने। नहीं, जैसे आपने बताया कि आपको फील करना है, यू वांट टू से एंड यू वांट टू फील, तो फीलिंग तभी आ पाएगी जब आप विजुअलाइज करोगे। और विजुअलाइज अगर मैं करता हूँ तो इट इज समथिंग लाइक दैट आई एम रिपीटिंग दैट इंसिडेंट अगेन, तो इससे निगेटिविटी और तो नहीं बढ़ेगी? मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप फर्स्ट राउंड करते हैं ना, ईएफटी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है मालूम है, कि कोई भी चीज को अगर आप निगेटिव भी रिपीट करोगे ना तो ईएफटी में उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो निकलता ही है। इट्स लाइक अ ब्लॉक। जैसे मैंने कहा ना कि गन्ने के आप अगर उसको पेंडी को या जो भी गन्ने का अगर वो है शुगर केन है, उसको आप क्रश करो, मारो, पीटो, कुछ भी करो, बाय एनीवेज निकलना क्या है उसमें से, जूस ही निकलना है, राइट है। तो ईएफटी के केस में कैसा होता है कि जब आप टाइपिंग करते हैं, इसके लिए मैंने कहा ना टाइपिंग एंड पानी पीना, आप अगर उस पास्ट को बार बार देखेंगे, मान लो आपने पास्ट को 10 बार देख लिया पूरे दिन के अंदर और आपने 10 बार टाइपिंग कर लिया, आपको अच्छा महसूस होगा, यू विल फील बेटर एंड कंफर्टेबल, वो रिलीज होगा बॉडी से, वो रुकेगा नहीं बॉडी के अंदर, वो पास्ट निकल जाएगा। और अगर पास्ट दिखेगा भी आपको तो वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। वो एक ऐसा मूवी, जैसे कैसे मूवी में कोई किसी को मारता है, पीटता है, हम लोग कोई कोई अफेक्ट होता है, कोई कोई रोता है पिक्चर देख के, कोई कोई बोलता है अरे हाँ ये तो पिक्चर है ना, राइट, इट इज समथिंग लाइक दैट। तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसमें कुछ बॉडी में नेगेटिव इंपैक्ट कुछ भी नहीं आता है, पॉजिटिव। ठीक। अच्छा, कल ये मैं कर रहा था तो इनफैक्ट इट वाज समथिंग लाइक अ 3 सीन टेक्निक। फर्स्ट सीन में मैंने देखा कि आई विजुअलाइज कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, फिर वो सीन मैंने हटा दिया। सेकंड स्टेप में कि मैं उस पर कुछ पॉजिटिवली काम कर रहा हूँ, एक्शन ले रहा हूँ। थर्ड सीन में मीन थर्ड स्टेप में मैंने विजुअलाइज कि आई हैव कंप्लीटली रिकवर्ड, आई एम डूइंग बेटर। तो इज दैट करेक्ट वे? हाँ, करेक्ट वे ना। और क्या कर सकते हो, मान लो अगर इंटेंसिटी जल्दी कम नहीं होती है ना, तो उसका और एक रूल समझ लो आप, कि निगेटिव कब तक बोलना है, जब तक कि मेरी इंटेंसिटी 5 तक नहीं आ जाए, 5 या 6 तक ना आ जाए, तब तक निगेटिव बोल के 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड खत्म करो। ठीक है, रोने को दिल करे तो रो, हंसने को दिल करे हंसो, जो करे करे, है ना, राइट है। फिर जब एक बार 5 के आसपास आ जाना इंटेंसिटी, तो फिर उसको आप चले जाओ पॉजिटिव वे में। ठीक है, और फिर पॉजिटिव वे में बोल बोल के उसको आप 0 तक लेके जाओ। ओके। हाँ, तो 6 या 7 तक निगेटिव बोलो, 6 7 तक, जैसे 7 के नीचे चले जाए उसको एक्सेप्टेंस में लेके चले आओ, राइट है। तो अभी आप 3 राउंड कर सकते हो, ऐसे भी कर दो, 9 राउंड हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो फाइन, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना। मेन क्या है कि अपने को एक एक चैलेंज लेके उसको निकाल देना है। जो भी चैलेंज अपने आ रहा है दिन में ना, चाहे वो फाइनेंस का हो, चाहे वो गुस्से का हो, देखो टेंजिबल का प्रॉब्लम लोगों को कम है, बट इनटेंजिबल का प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहा है आजकल। राइट। रिलेशनशिप का ले लो, हैप्पीनेस का ले लो, जॉय का ले लो, ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है। तो ये सब इमोशनल स्टकअप है ना,
कहीं ना कहीं। और ये जो एक्सरसाइज है ये कहीं मैं अगर व्हीकल में भी कर सकता हूँ ना? हाँ हाँ हाँ, कहीं भी। लेकिन क्या होता है, बैठ के अगर करते हैं ना इसको, आप अगर बैठे हैं और 1 घंटे का ड्राइव है, आप आराम से कार में बैठे हैं, ड्राइवर अपना ड्राइव कर रहा है, तो आप तो फ्री ही हो ना, तो आपको राइट। कोई टेंशन है ही नहीं। तो आप क्या करो, आप आराम से बैठो और अपना टाइपिंग करो, सेटअप करो, टाइपिंग करो और पानी पियो, बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। यू कैन यूटिलाइज योर ट्रैवलिंग टाइम। राइट राइट। अच्छा, एक मेरा ऑब्जर्वेशन था, कल कल मैं मेरा व्हीकल में मैं कर रहा था इवनिंग के टाइम, घर पे आते टाइम वो एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करने के बाद मुझे पैर में थोड़ा हीट महसूस हुआ, और बाद में घर पे आते टाइम आने के बाद मुझे पैर में वो हीट लगा, थोड़ा टाइम फिर भी सो गया, बट स्टिल मेरे लेग में थोड़ा सा हीट लगा मुझे, कि ऐसा लगा कुछ जल रहा है करके। अब बाद में वो ठीक हो गया, ये सोने के बाद थोड़ा ठीक हो गया, क्योंकि ये फीलिंग मेरे को पहले कभी नहीं आया था। तो इज इट राइट जब कि आप कुछ? EFT करेंगे ना, ये EFT में क्या होता है, जो इमोशनल है ना, ये कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया रहता है, पकड़ ली किसी किसी ऑर्गन के अंदर ना बैठ जाता है, जैसे बोलते हैं ना ब्लड कैंसर। तो ये एनर्जी जो निगेटिव है ना, ये बॉडी में कहीं ना कहीं बैठ जाती है, ठीक है। तो जब आप अच्छा। EFT करोगे ना, तो आपको कई बार किसी को यॉर्निंग आएगा, है ना, किसी ओके। को बॉडी में कोई ऑर्गन गर्म हो जाएगा, है ना, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट है। अच्छा, इट्स नॉर्मल। इट्स नॉर्मल थिंग, क्योंकि देखो इमोशनल सेटअप कहाँ हुआ है आपकी बॉडी में, अपने को नहीं मालूम है ना, आई डोंट नो ना, कि आपके बॉडी में वो निगेटिव एनर्जी कहाँ जाके किस पार्ट में बैठी है, राइट है। तो ओके। वो फिर जब आप करोगे EFT, तो वो एनर्जी ब्लॉक जो है वो क्लीन होगा, और पानी पी लेंगे, फिर वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। कई लोगों का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, इट्स नॉर्मल, नॉट अच्छा। बिग डील, एनीथिंग कैन हैपन, राइट है। क्योंकि उसको तो निकलना है ना, एनर्जी को तो निकल, जैसे मान लीजिए किसी को कांटा चुभ गया है, अभी कांटा चुभ गया है, निकालेंगे तो दर्द तो होगा ना। राइट। अब कोई बोले कि नहीं दर्द हो रहा है इसलिए कांटा मत निकालो, तो दैट इज नॉट द करेक्ट वे ना, उसको कितने दिन लेके चलोगे ना लाइफ में। राइट। वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने अलग अलग इंसिडेंसेस से चीजें पकड़ लेती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। ओके। अच्छा, ये जितनी बार ये अगर मैं टैपिंग बहुत बार करता हूँ तो बहुत तकलीफ होगा क्या, ऐसा है? तकलीफ नहीं होगा, वो कितना पकड़ा है अंदर उसके ऊपर होगा। हाँ, ओके। दैट्स ऑल। और इट्स टोटली सेफ, कुछ तकलीफ जैसा नहीं है, वो निकल जाएगा, आप हल्के हो जाओगे, दैट्स द ओनली थिंग। ओके। ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू धर्मेंद्र जी। ओके हैव जी, अ नाइस डे। बाय। थैंक यू, बाय बाय।